Welcome in Aswani classes, Trigonometry part 3. In this part, we are going to discuss trigonometrical ratios of 90 plus minus theta, 180 plus minus theta, 270 plus minus theta, 360 plus minus theta and minus theta. In class 9-10, we already read trigonometrical ratios of 90 minus theta. एक 90 माइनस थीटा का आप लोग पढ़े होंगे. साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक थीटा एंड कॉसेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा. So only 90 minus theta, its trigonometrical ratio we read in standard 9-10. Here we are going to read trigonometrical ratios of 90 plus theta also, then 180 plus theta, 180 minus theta, 270 plus theta, 270 minus theta, 360 plus theta, 360 minus theta, and this is last but very important, most important, trigonometrical ratios of minus theta. This will be used in physics frequently. Trigonometrical ratios of minus theta. All these things will be used in physics also. So you all try to see these things very carefully. Before writing the trigonometrical ratios of these angles, you should keep in your mind one thing. एक बेसिक तरीका है जिसको आप दिमाग में रखिए, सब अपने आप होगा, कुछ याद करना नहीं है. One complete rotation of a revolving line means it is a circle. As in video 1 you have read, it is divided into 4 equal parts by 2 perpendicular lines is the center of the circle, and each part is called a quadrant. One complete rotation of a revolving line means complete 360 degree is divided into 1, 2, 3, 4 parts by using 2 perpendicular line. Each part is called a quadrant. This is first quadrant, this is your second quadrant, this is third quadrant, and this is your fourth quadrant. This you know. First quadrant is from 0 degree to 90 degree. How? We read that one quadrant is divided into 90 equal parts and each part is called a degree. So in one quadrant total 90 degrees are there. 1 degree, 2 degree, 3 degree up to 90 degree. And then after 90 degree, जैसे 90 degree cross करेगा, your second quadrant start and it will continue up to 180 degree तक चलेगा. As cross 180 degree, third quadrant will start and it will continue up to 270 degree, and as 270 degree cross, fourth quadrant start and it will continue up to 360 degree, and then again 360 and 0 will coincide and then again first quadrant and so on. First thing. Secondly, you must know in first quadrant means 0 degree to 90 degree. In this quadrant, all the trigonometrical ratios are positive. मतलब 0 डिग्री से 90 डिग्री तक किसी भी एंगल का कोई भी trigonometrical ratio पॉजिटिव होता है. All trigonometrical ratios sin to cosec from 0 degree to 90 degree are positive. इसको लिखेंगे ऐसे, all ये trigonometrical ratios लिखते हैं ऐसे, ऐसा करते हैं ना, all शॉर्ट में लिखते हैं, all trigonometrical ratios are पॉजिटिव, ज्यादा भीड़ भी ना हो. टी आर क्या है? त्रिकोणोमेट्रिकल रेशियोज. ये जो लिखे, ऑल त्रिकोणोमेट्रिकल रेशियोज आर पॉजिटिव.
मतलब जैसे साइन का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, कॉस का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक सब का वैल्यू पॉजिटिव आएगा 0 से 90 डिग्री तक में। आप पढ़े हैं ना क्लास 10 में 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री इसका साइन वैल्यू सब पॉजिटिव आता था, कॉस वैल्यू पॉजिटिव आता था, टेन वैल्यू, कॉट वैल्यू, सेक वैल्यू, कॉसेक वैल्यू कोई नेगेटिव नहीं आता था। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल त्रिकोणोमेट्रिकल रेशियोज आर पॉजिटिव, ये आपको जानना है। अब आ जाइए सेकेंड क्वाड्रेंट। इन सेकेंड क्वाड्रेंट यू मस्ट रिमेंबर साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव। साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। जो लिखे हैं पॉजिटिव वो पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव होगा। 90 डिग्री से 180 तक में कोई भी एंगल लें तो उसका साइन पॉजिटिव होगा, उसका कॉसेक पॉजिटिव होगा, और कॉस, टेन, सेक का क्या होगा, वो सब नेगेटिव होगा। समझ गए बात। थर्ड क्वाड्रेंट में मतलब 180 से लेके 270 तक में आप इसको याद रखिए, टेन एंड कॉट आर पॉजिटिव। टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी नेगेटिव होगा। 180 और 270 के बीच में अगर कोई एंगल लेते हैं तो उसका साइन नेगेटिव होगा, कॉस नेगेटिव होगा, खाली टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, सेक भी नेगेटिव होगा, कॉसेक भी नेगेटिव होगा। इतना आप याद रखें। इन फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव। यहां कॉस और सेक पॉजिटिव होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, बाकी सब नेगेटिव होगा। आप ऐसे याद रखें। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, कुछ जरूरत नहीं। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन, कॉसेक पॉजिटिव। इन थर्ड क्वाड्रेंट टेन एंड कॉट पॉजिटिव। इन फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस एंड सेक पॉजिटिव। दिस मच you have to remember. In second quadrant sin and cosec, in third quadrant tan and cot, and in fourth quadrant cos and sec are positive. Secondly, you have to remember, in case of 90 चाहे प्लस हो या माइनस, ये वाला में 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा, एंड 270 प्लस थीटा और माइनस थीटा, ये जो दो है, इन दीज टू त्रिकोणोमेट्रिकल रेशियोज विल चेंज। त्रिकोणोमेट्रिकल रेशियोज जो है ना वो चेंज हो जाएगा। चेंज का मतलब साइन चेंज हो जाएगा आपका कॉस में, और कॉस चेंज हो जाएगा साइन में। टेन चेंज होगा कॉट में, और कॉट चेंज होगा टेन में, दोनों साइड से। एंड सेक विल चेंज इनटू कॉसेक, और कॉसेक विल चेंज इनटू सेक। इतना आप खाली याद रख लीजिए बस। ये विजिबल है तो नीचे वाला, यस। यू शुड ओनली कीप इन योर माइंड, इन केस ऑफ 90 एंड 270, ये वाला जो लाइन है ये 90 है ना, 90 और 270 में चाहे प्लस हो या माइनस, त्रिकोणोमेट्रिकल रेशियोज विल चेंज। चेंज मतलब साइन का चेंज होके कोई टेन नहीं हो जाएगा। साइन का कॉस, कॉस का टेन, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक, बस इतना ही चेंज होता है। ये दो चीज आप दिमाग में रखिए, बाकी देखिए सब फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। चलिए एक एक करके लिखते हैं। जैसे आपको लिखना है साइन 90 प्लस थीटा लिखना है, इन केस ऑफ 90, ये 90 का मामला है। 90 में त्रिकोणोमेट्रिकल रेशियो जो है वो चेंज होता है। चेंज होता है मतलब
साइन 90 प्लस थीटा है ना, ये कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा होगा। साइन 90 प्लस थीटा ये साइन का हो जाएगा कॉस। ठीक है, ये तो हो गया, साइन को कॉस कर देना है, कॉस को साइन कर देना है। अब हम लोग को ये देखना पड़ता है कि 90 प्लस थीटा वेयर दिस एंगल इज, ये एंगल कहां है। इट इज 90 प्लस थीटा मीन्स इट इज मोर देन 90, ऐसा पार हो जाएगा, 90 से ज्यादा हो जाएगा। 90 प्लस थीटा एंगल का मतलब है 90 से थोड़ा ज्यादा, समथिंग इज एडेड। तो 90 प्लस समथिंग मीन्स इट विल बी कंसिडर्ड इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक का वैल्यू को पॉजिटिव लेंगे और बाकी सब का वैल्यू को नेगेटिव लेंगे। यही हम लोग तो सीख के रखे कि साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव एंड रेस्ट आर नेगेटिव। सो दिस इज कमिंग वैल्यू ऑफ साइन, ये साइन का वैल्यू आ रहा है, इसलिए ये प्लस रहेगा। समझ गए बात। सेकंड देखिए, कॉस 90 प्लस थीटा, तो कॉस का क्या हो जाएगा, साइन चेंज होगा, 90 में चेंज होता है। 90 प्लस थीटा मीन्स इट इज द एंगल इन सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड इन सेकेंड क्वाड्रेंट वैल्यू ऑफ ये है एंगल, इसका कॉस। तो एंगल जब सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो उसका कॉस, सेकेंड क्वाड्रेंट में जब होगा तो साइन और कॉसेक का पॉजिटिव होता है, बाकी सबका नेगेटिव। सो इट्स वैल्यू विल बी नेगेटिव बिकॉज इन सेकेंड क्वाड्रेंट ओनली वैल्यू ऑफ साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव। सो कॉस विल बी नेगेटिव। tan 90 plus theta, obviously it is cot theta, and since 90 plus theta is in second quadrant, and in second quadrant only sine and cosec positive, so value of tan will come negative. Cot cot 90 plus theta, it will change tan theta, and cot will also be negative. Sec 90 plus theta, sec will change into sin cos, cos sin, tan cot, cot tan, sec will be changed into cosec, cosec theta, and sin will be negative. इसको माइनस लिखें, माइनस cosec theta, and cosec 90 plus theta, cosec will be changed into sec, but sin will be positive because cosec is positive in second quadrant. So in this way you can write trigonometrical ratios of 90 plus theta. I think you have understand. खाली साइन का चेंज करके cos, cos का साइन, tan का cot, cot का tan, sec का cosec, cosec का sec. और चूंकि ये एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो साइन का वैल्यू पॉजिटिव होगा और कॉसेक का वैल्यू पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा. आई होप यू हैव अंडरस्टैंड हाउ टू राइट trigonometrical ratios of 90 plus theta. Now let us see trigonometrical ratios of 90 minus theta. 90 minus theta you have already read in class 10. Then also see once again. Sin 90 minus theta. 90 whether it is plus or minus, चेंज तो होना है, चेंज हो गया. 90 माइनस थीटा मीन्स 90 से थोड़ा कम. 90 से थोड़ा कम मतलब इस तरह से. दिस एंगल मे बी 90 माइनस थीटा. 90 माइनस थीटा मीन्स लेस देन 90, and less than 90 means it is coming in which quadrant? The angle comes in first quadrant, and in first quadrant all values will be positive. Values of all trigonometrical ratios are positive. एकदम आंख बंद करके सब positive. Cos 90 minus theta, 90 प्लस है चाहे माइनस है, चेंज होना है. साइन का cos, cos का साइन, पॉजिटिव होना है ना. Cot
90 माइनस थीटा, कॉट का हो जाना है 10, और ये चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो सब पॉजिटिव होगा. यू कैन राइट ऑल द रिमेनिंग्स. सेक 90 माइनस थीटा, सेक का कॉसेक होगा, कॉसेक का सेक होगा, और सब पॉजिटिव होगा, तो कॉसेक सॉरी सेक का वैल्यू भी पॉजिटिव आएगा. तो इन दिस वे वी कैन राइट trigonometrical ratios of 90 minus theta. I hope you have understand how to write trigonometrical ratios of 90 minus theta. Now see, now come to 180. जैसे आपको लिखना है साइन 180 प्लस थीटा लिखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू रिमेंबर in case of 90 and 270 plus or minus trigonometrical ratios will change. What about other cases? बाकी में चेंज नहीं होगा, बाकी में सेम रहेगा. Only in case of 90 and 270 change, and in rest other cases means 180 plus minus or 360 plus minus or minus theta, trigonometrical ratios will remain same. ये साइन 180 माइनस थीटा है ना, ये साइन थीटा ही रहेगा, साइन का कॉस नहीं होगा, नो चेंज. ओनली इन केस ऑफ दीज टू चेंज, बस ये देखना है. और ये 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा मीन्स 180 प्लस समथिंग. 180 प्लस समथिंग मीन्स इट इज, ये 180 हो गया, 180 से थोड़ा ज्यादा, मोर देन 180. 180 प्लस थीटा एंगल, इट मीन्स इट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट. ये एंगल घूम के थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा. एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट टेन एंड कॉट विल बी पॉजिटिव. एंड व्हाट अबाउट रेस्ट? रेस्ट आर नेगेटिव. खाली 10 और कॉट का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, बाकी सब नेगेटिव लेंगे. 180 प्लस थीटा मीन्स इट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट. सो कॉस 180 प्लस थीटा, कॉस का कॉस ही रहेगा यहाँ, नो चेंज. इन केस ऑफ 180 नो चेंज. और ये कॉस का वैल्यू क्या होगा थर्ड क्वाड्रेंट में? 10 और कॉट पॉजिटिव, इसका नेगेटिव होगा. आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड. सी, यू हैव टू राइट सपोज सेक 180 प्लस थीटा, नो चेंज सेक थीटा. It is in third quadrant. In third quadrant only 10 cot positive. Sec will be negative. को लिखना है cot 180 plus theta. There will be no change cot theta. And in case of third quadrant, cot is positive. Cot and 10 will come positive. Rest will be negative. So in this way, you will write for all sin, cos, 10, cot, sec, cosec. You can write trigonometrical ratios of 180 plus theta. Okay, let us see now trigonometrical ratio of 180 minus theta. कुछ याद नहीं करना है, आप समझ के रख लीजिए बस. No need to remember anything. You understand only these two things. Any result you can write. Suppose you have to write 180 minus theta. 180 के केस में no change. In case of 180 नो चेंज, साइन थीटा ही रहेगा. इसका वैल्यू जो है ना, साइन का वैल्यू साइन में ही रहेगा. 180 माइनस थीटा मीन्स लेस देन 180. यहां तक 180 है. 180 माइनस थीटा मीन्स इट इज लेस देन 180. मीन्स द एंगल कम्स इन सेकेंड क्वाड्रेंट. और सेकेंड क्वाड्रेंट में तो साइन का वैल्यू पॉजिटिव होगा और कॉसेक का वैल्यू पॉजिटिव होगा, बाकी सबका नेगेटिव होगा. ये कॉस का वैल्यू नेगेटिव होगा और नो चेंज. कॉट 180 माइनस थीटा, कॉट का वैल्यू नेगेटिव होगा एंड नो चेंज. समझ रहे हैं बात? कॉसेक, कॉसेक 180 माइनस थीटा, कॉसेक का वैल्यू कौन सा है? ये क्वाड्रेंट सेकंड. साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव होगा एंड नो चेंज कॉसेक थीटा. In this way you can write trigonometrical ratios of 180 minus theta. So you will write for all. Now see
trigonometrical ratios of 270. Suppose you have to write sin 270 plus theta. In case of 270 change, sin का cos हो जाएगा. And 270 plus theta means it is more than 270. See, 180 up to here 270, more than 270. More than 270 means this angle comes in fourth quadrant. ये एंगल चला जाएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो वैल्यू ऑफ कॉस एंड सेक विल बी टेकन एज पॉजिटिव and rest other will be taken as negative. So value of sin will come negative. Okay, then cos 270 plus theta, what will be value of cos? Cos and sec will come positive and it will change sin theta. Tan 270 plus theta, in case of 270 change तो होना है, cot theta होना है. 270 plus theta means fourth quadrant, tan will be negative. सिर्फ cos और sec को पॉजिटिव करना, बाकी सबको नेगेटिव करना. तो इन दिस वे यू कैन राइट त्रिकोणोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ 270 प्लस थीटा. यही देखिए, सपोज यू हैव टू राइट साइन 270 माइनस थीटा. ओके, अच्छा जस्ट अ मिनट, लेट मी रफ. Sin 270 minus theta. In case of 270 change 270 minus theta. यहां तक 270 है. 270 minus theta means it is less than 270. Means it is in which quadrant? This angle comes in third quadrant. In third quadrant, tan and cot will be taken as positive. Rest are negative. So value of sin will be negative. Cos 270 minus theta, change तो होना है sin theta, और sin negative. खाली tan पॉजिटिव होगा. tan 270 minus theta, change तो होगा, साथ में tan का वैल्यू पॉजिटिव होगा इन थर्ड क्वाड्रेंट. तो इन दिस वे वी कैन राइट त्रिकोणोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ 270 प्लस थीटा और 270 minus theta. Okay, now try to understand sin 360 plus theta. In case of 360 no change, खाली 90 और 270 के केस में चेंज होगा, बाकी केस में नो चेंज. साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट एंड सो ऑन. 360 प्लस थीटा, यू हैव टू सी 360 प्लस थीटा, इट इज 360. 360 प्लस थीटा मीन्स 360 प्लस समथिंग. दिस इज 360 प्लस थीटा. 360 से थोड़ा ज्यादा, मतलब ये चला आया फर्स्ट क्वाड्रेंट. सो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सब पॉजिटिव आएगा. cos 360 प्लस थीटा, देयर विल बी नो चेंज एंड ऑल पॉजिटिव. समझ गए? 10 360 प्लस थीटा, देयर विल बी नो चेंज एंड ऑल पॉजिटिव. cosec 360 प्लस थीटा, cosec थीटा, नो चेंज विथ प्लस साइन. क्लियर? So I hope you have understand how to write trigonometrical ratios of 360 plus theta, and let us see now trigonometrical ratios of 360 minus theta. Okay, so you have to write sin 360 minus theta. In case of 360 no change, sin theta ही रहेगा. 360 minus theta means it is लेस देन 360. 360 से थोड़ा कम, 360 से थोड़ा कम मतलब यहां तक तो 360 हो जाएगा, उससे थोड़ा कम ही रहेगा यहां तक. दिस इज योर 360 माइनस थीटा. 360 माइनस थीटा मीन्स दिस एंगल कम्स इन थर्ड क्वाड्रेंट.
So for the value of 360 minus theta, cos and sec will be taken as positive, rest will be taken as negative. Value of sine will come negative. Cos 360 minus theta, 360 में no change, but cos and sec are positive. Tan 360 minus theta, no change, and tan will be negative, is not it? Because cos and sec will be positive, rest all negative. So in this way we can write trigonometrical ratios of 360 plus theta as well as 360 minus theta. Okay, now last but very important, trigonometrical ratios of minus theta, that you must understand. ये समझ गए आप? इसको ठीक से समझिए, लास्ट वाला साइन माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा एंगल. इन केस ऑफ माइनस थीटा देयर विल बी नो चेंज. साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कॉसेक का कॉसेक. सिर्फ 90 और 270 के केस में चेंज होता है, बाकी सब में सेम रहता है. नाउ क्वेश्चन इज माइनस थीटा एंगल. माइनस थीटा मीन्स व्हेन एंगल इज टेकन इन क्लॉकवाइज रोटेशन, बाय क्लॉकवाइज रोटेशन, इधर से जब लेते हैं तब एंगल को लेते हैं हम लोग माइनस. माइनस थीटा मीन्स दिस एंगल इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट. अब पढ़े शुरू में ही ना, इफ एंगल इज फॉर्म्ड बाय क्लॉकवाइज रोटेशन, इधर से अगर रोटेट करके एंगल बन रहा है, दैट एंगल विल बी टेकन एज नेगेटिव. सो माइनस थीटा एंगल रिटर्न मीन्स एंगल इज इन below this line, means in fourth quadrant. In fourth quadrant means cos and sec will be positive and rest will be negative. Value of sine will be negative and sine will remain sine. cos का क्या होगा? सेम रहेगा और cos तो पॉजिटिव होगा, फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है. tan का क्या होगा? सेम रहेगा, टेन थीटा ही रहेगा और नेगेटिव होगा. कॉस एंड सेक ओनली पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव. कॉट माइनस थीटा, कॉट भी नेगेटिव होगा और सेम रहेगा. सेक माइनस थीटा, इट विल रिमेन सेक थीटा, बट दिस एंगल इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस एंड सेक पॉजिटिव. सेक का जो वैल्यू आएगा वो प्लस में लेंगे हम लोग. ये कॉस एंड सेक, दीज टू आर पॉजिटिव, रेस्ट विल बी नेगेटिव. कॉसेक माइनस थीटा, cosec will remain cosec, no change, but it is the matter of fourth quadrant. In fourth quadrant, value of cosec will be negative. Only value of cos and value of sec are positive and rest are negative. In this way, we can write trigonometrical ratios of 90 plus minus theta, 180 plus minus theta, 270 plus minus theta, 360 plus minus theta and minus theta. Only two things you have to remember in case of 90 plus minus theta and 270 plus minus theta. Trigonometrical ratios will change. Trigonometrical ratios will change means sine will change into cos, cos will change into sine. Change का मतलब tan change होके cot हो जाएगा और cot change होके tan होगा और sec change होके cosec होगा, cosec change होके sine होगा. In case of 90 and 270 ये चेंज आएगा एंड साइन विल बी अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट. कौन सा क्वाड्रेंट में वो एंगल जा रहा है उसके हिसाब से साइन होगा. इफ एंगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट
value of all trigonometrical ratios will come positive. If angle is coming in second quadrant, values of sine and cosec will be positive, rest other negative. If angle is coming in third quadrant, values of tan and cot will come positive, rest will be negative. If it is coming angle in fourth quadrant, value of cos and sec will come positive and rest will come negative. So I hope you now easily write trigonometrical ratios of where it is 90 plus theta, 360 plus theta, or 270 minus theta, or minus theta. Trigonometrical ratios of minus theta is most important. Okay, so go on watching trigonometry. In the next part we see some very important problems and few more results are there. Those things we discussed in part 4. In class 10 you have read trigonometrical ratios up to 90 degree. That's a sine 90, sine 45, sine 60, sine 90. That's much, this much. Here we read trigonometrical ratios of 120 degree, sine 120 degree, sine 135 degree, sine 150 degree. These are also considered as standard angle. 120, 135, 150, 180. So we read trigonometrical ratios of those angles also in the next part, and also we solve some basic problems to understand the basic concept based on these results, as well as trigonometrical ratios of standard angles. So go on watching trigonometry. Thank you for watching.